Hello everyone, welcome back in science classes by SM. Me SM going to continue with the chapter that is the living world of class 11th biology. So आज हम इस चैप्टर का लेक्चर सेकंड कवर करेंगे. लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था डिफाइनिंग फीचर और बायोडाइवर्सिटी के बारे में और लेक्चर सेकंड में हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेक्सोनमी. इस वर्ड का क्या मतलब है taxonomy? So basically it is a branch of science. It is a branch of science which deals with the law of arrangement and grouping of the organisms. Okay, so the term taxonomy deals with it is the branch of a science which deals with the laws of arrangement and grouping of the organisms. ठीक है. अब who is the father of taxonomy? Who is the father of taxonomy? So the father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Okay, Carolus Linnaeus. Or who gave the term taxonomy? The term taxonomy is given by A.P.D. Candley. Okay, A.P.D. Candley. So this word taxonomy is come from Greek language and from the word taxis plus nomos. Okay, taxis plus nomos. Taxis means arrangement and nomos means norms or rules, or you can say laws. Okay, so basically there are 5 points on which we can classify or arrange the organism. The first one is characterization. Second one is identification. Fourth is nomenclature. Fifth one is classification. ओके आप इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज CINC. ओके, एक और टर्म है दैट इज सिस्टमैटिक्स. जो सिस्टमैटिक्स है ना वो टेक्सोनॉमी से सिमिलर है, ठीक है, बट हल्का सा चेंज है. जैसे टेक्सोनॉमी में ये सारी चीजें आती हैं, सिस्टमैटिक्स में भी ये आती हैं, पर साथ में आता है फाइलोजेनी. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज फाइलोजेनी? Phylogeny is the study of evolution. Okay, so the term is given by Carolus Linnaeus. Okay, and this term is derived from Latin word, from Latin language. Okay, Latin language which means the word systema. Okay, systema का मतलब क्या होता है? Systema का मतलब होता है sequence or order. Okay, sequence या order. So taxonomy, it is a branch of science which deals with the laws of arrangement and grouping of the organism. The father of taxonomy is Carolus Linnaeus. The term is given by A.P.D. Candley. This
term is derived from the Greek language from the word taxis plus norms. Taxis means arrangement, norms means norms, rules or laws. Okay, so there are 5 points on which we can arrange the organisms into groups. The first one is characterization, second is identification, third is nomenclature, fourth is classification. There is another word that is systematics, which is similar to the word taxonomy. Systematics is similar to the word taxonomy, but a little bit difference is there कि हम यहाँ पर ये 4 points तो इस systematics में भी आती हैं, but इन 4 points के साथ साथ एक और term ऐड हो जाती है, that is phylogeny. ठीक है, phylogeny, what is phylogeny? Phylogeny is the study of evolution. Phylogeny is the study of evolution. Okay, so the term is given by systematics is given by Carolus Linnaeus. Okay, and this term is derived from the Latin language from the word systema. Systema means sequence or order. Okay, I hope यहाँ तक आपको clear होगा. There is one another term that is ontogeny. Okay, so what is ontogeny? Ontogeny क्या होता है? Development history. Okay, जो ontogeny term है, इसका मतलब होता है development हिस्ट्री. ओके, और ये जो टर्म है ये किसके अंदर आती है? टैक्सोनॉमी के अंदर या सिस्टमैटिक्स के अंदर? दिस टर्म इज कम्स अंडर टैक्सोनॉमी. ओके, ये टैक्सोनॉमी का वर्ड है, टैक्सोनॉमी के अंदर ये टर्म आती है. सो नाउ बेसिकली जो टैक्सोनॉमी होता है ना, टैक्सोनॉमी ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, first one is classical, okay, and second one is modern. ठीक है, क्लासिकल के अंदर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मॉडर्न के अंदर हम लोग मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं, सेल स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं. ओके, डेवलपमेंट भी, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्टडी करते हैं. ओके, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्टडी करते हैं. ये 4 थिंग आते हैं मॉडर्न के अंदर. और क्लासिकल के अंदर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख के उसको ग्रुप में कैरेक्टराइज कर देना, मतलब ये इस ऑर्गेनिज्म की तरह दिखा तो इसको इस ऑर्गेनिज्म के ही ग्रुप में डाल दो. बट मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर हम उसका मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं, उसका सेल स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं, और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी स्टडी करते हैं. ओके, so now come to the next term, that is binomial nomenclature. So what is binomial nomenclature? What is binomial nomenclature? बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. ओके, सो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का प्रपोजल किसने दिया था? किसने प्रपोजल दिया था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का? कार्लस लिनियस. नहीं भाई, हर चीज कार्लस लिनियस नहीं करते, इसको दिया था कैस्पर बोहेन ने. ओके, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो प्रपोजल है वो कैस्पर बोहेन ने दिया था. इसके प्रिंसिपल्स किसने दिए थे? ये दिया था कार्लस लिनियस ने. ओके, और फॉर प्लांट्स वो भी, और फॉर एनिमल्स, इन दोनों के लिए भी कार्लस लिनियस ने ही दिया था. ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ. ओके, सो अब एक बुक भी पब्लिश हुई थी, बुक्स, जो प्रपोजल दिया था कैस्पर बोहेन ने. प्रपोजल इसके लिए कौन सी बुक थी? फीनेक्स. और ये कब रिलीज हुई थी? 1623 में. ठीक है, और प्रिंसिपल किस बुक में पब्लिश हुई थी? जो हमारा प्रिंसिपल है ये पब्लिश हुआ था फिलोसोफिया बोटानिका में. और ये कब हुई थी? 17
51 में. ओके. फॉर प्लांट्स के लिए कब हुई थी? प्लांट्स के लिए किस उसमें हुई थी बुक में? स्पीशी प्लांटेरम. एक मिनट, ये और ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1753 में. फॉर एनिमल्स वो था सिस्टमा नेचुरल. ओके. और ये 1758 में पब्लिश हुई थी. ओके. इसके अंदर 5900 स्पीशीज को डिस्कवर किया गया था और इसके अंदर 4326 स्पीशीज को डिस्कवर किया गया था. ओके. ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा. अब इनके लिए ना अलग अलग कोड भी है. वो कोड क्या है वो देखते हैं. So basically there are 5 codes. Okay. 5 codes. The first one is ICBN. ICBN stands for International Code for Botanical Nomenclature. Okay. International Code for Nomenclature. Second one is ICNCP. This stands for International Code for Nomenclature of Cultivated Plant. Okay. Third one is ICZN. ICZN stands for International Code for Zoological Nomenclature. Fourth one is ICNV. Stands for International Code for Nomenclature of Bacteria. And the last one, that is fifth one, is ICUCN. This stands for International Code for Virus Classification and Nomenclature. So basically these are the 5 codes. अच्छा, there is one question कि हम फंजाई को किस कोड में पुट करेंगे? फंजाई बताइए, इन पांचों में से फंजाई किस कैटेगरी में आएगा, किस कोड के अंडर आएगा? सो इट विल कम अंडर दिस ICBN. फंजाई को हम ICBN में पुट करेंगे. ओके. और इनमें से कौन कौन से कोड हैं जो यूकैरियोट्स के लिए? सो यूकैरियोट्स के लिए फर्स्ट 3 बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उसके बाद कल्टीवेटेड प्लांट्स और उसके बाद जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. बाकी के नीचे तो बैक्टीरिया और वायरस हैं और वो तो यूकैरियोट्स होते नहीं हैं. ओके. सो दीज आर फॉर द यूकैरियोट्स. Okay. So now next topic. Rules for the binomial nomenclature. Okay. Rules for binomial nomenclature. Okay. So let us take an example.
example of mango. Okay, so Mangifera indica. Okay, Mangifera indica, एक मिनट. मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है. सो टोटल जो है ना हमारे वो 76 रूल्स होते हैं. ओके, 70, देयर आर 76 रूल्स. ठीक है. सो जो पहला वर्ड होता है ना, ये पहला, ये हमारा होता है जीनस का. ओके, और इसके अंदर हम, ये पहला जो वर्ड होता है वो होता है जीनस का, और इसके अंदर 3 to 12 अल्फाबेट्स हो सकते हैं. दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिटेट का. ठीक है. इसके अंदर भी 3 to 12 अल्फाबेट हो सकते हैं. ठीक है. तो जीनस में जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिटेट का फर्स्ट अल्फाबेट है वो स्मॉल होना चाहिए. ठीक है. अगर हम इसको हैंड रिटन कर रहे हैं तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, इट शुड बी अंडरलाइन. और अगर हम इसे टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे. ओके. और अगर इसके ऑथर का भी नेम हमें लिखना है तो ऑथर का नेम हम, जैसे इसका ऑथर है कार्लस लिनस, तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे. ठीक है. हम यहाँ पे लिख देंगे लिनस, या फिर ऐसे लिखेंगे. ठीक है. सो बेसिकली दीज आर द 5 रूल्स. अच्छा, अगर स्पेसिफिक एपिटेट जो है वो 3 है. ठीक है. ए, बी और सी. ठीक है. तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे जो पहले डिस्कवर हुआ होगा. मान लो ये डिस्कवर हुआ है 1701 में, ये डिस्कवर हुआ 1802 में, और ये डिस्कवर हुआ 1908 में. ठीक है. तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जो पहले डिस्कवर हुआ. तो पहले कौन सा डिस्कवर हुआ? ये वाला. तो हम इसे पुट करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ ऑर्डर नोमेनक्लेचर. टोटोनेम, टोटोनेम. ओके. और सेकेंड वर्ड है हमारा पॉलीटिपिक. ठीक है. उसके बाद है मोनोटिपिक. उसके बाद है ट्राइनोमियल. सो इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? टोटोनिमा मतलब जिसमें जीनस और स्पेसिफिक एपिटेट जो है वो सेम हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल रैटस रैटस, इसमें देखो जीनस और स्पेसिफिक एपिटेट सेम है. जैसे कि गोरिल्ला गोरिल्ला, इसमें भी जीनस और स्पेसिफिक एपिटेट सेम है. जैसे नाजा नाजा, उसमें भी सेम है. पॉलीटिपिक यानी जिसमें जीनस सेम हो बट स्पेसिफिक एपिटेट चेंज हो. जीनस सेम होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिटेट डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो. ठीक है. इसमें हमारा जो जीनस है वो सेम है और जो हमारा स्पेसिफिक एपिटेट है वो डिफरेंट है. मोनोटिपिक का मतलब होता है इसका मतलब होता है जीनस हैविंग ओनली वन लिविंग स्पीशीज. ओके. और ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें जीनस हो प्लस स्पेसिफिक एपिटेट हो और उसके साथ सब स्पीशीज हो या फिर वैरायटी हो. ओके. इसका एक एग्जांपल है. एग्जांपल जैसे मान लो ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटेटा. ओके. तो ये हमारा क्या हो गया? जीनस. ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एपिटेट और ये हो गया हमारा
वैरायटी। ओके, सो एक और वर्ड आता है, सो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर सेकेंड। सो इसके आगे का चैप्टर हम लेक्चर थर्ड में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।